नमस्कार। कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते का लगातार दूसरा दिन भी अवरोध की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में अवरोध बरकरार, प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित। लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यों से संसद की गरिमा, परंपरा और मर्यादा बनाए रखने की अपील। राज्यसभा में सत्ता पक्ष की कांग्रेस के विदेशी संगठन से साठगांठ के मुद्दे पर चर्चा की मांग। नेता सदन जेपी नड्डा ने मामले को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। विपक्ष ने आरोपों का किया खंडन। राज्यसभा ने पूर्व सदस्य एसएम कृष्णा के निधन पर जताया शोक। सांसदों ने कुछ देर मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सदन ने मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के प्रति जताई अपनी प्रतिबद्धता। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज भी गतिरोध के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका और सभापति ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत में सदन की सदस्य महुआ मांझी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। राज्यसभा ने पूर्व विदेश मंत्री और उच्च सदन के सदस्य रहे एसएम कृष्णा के निधन पर शोक जताया। साथ ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। I refer with profound sorrow to the passing away of former member of this august house, Shri S.M. Krishna, today morning in Bengaluru at the age of 92. Born in Somanhalli in Karnataka's Mandya district on May 1, 1932, Shri Krishna commenced his public service in 1962 by winning the Madur Assembly seat as an independent candidate. Shri Krishna's illustrious career saw him don many hats: Speaker of the Karnataka Legislative Assembly 1989 to 1993, member of 4th, 5th and 7th Lok Sabha and member of Rajya Sabha for 2 terms from 1996 to 1999 and from 2008 to 2014, member of both the Karnataka Assembly and Council, Deputy Chief Minister 1993 to 1994, Chief Minister of Karnataka from 1999 to 2004, Governor of Maharashtra 2004 to 2008, and India's External Affairs Minister 2009 to 2012. As External Affairs Minister, his tenure was marked by India's active engagement in global diplomacy with a focus on strengthening India's position on the world stage. Sri Krishna's academic brilliance shone early. He earned his law degree from Government Law College in Bengaluru and later pursued advanced education at Southern Methodist University in Texas and George Washington University in Washington, D.C. as a Fulbright scholar. He was awarded Padam Vibhushan in 2023 for his illustrious contributions towards public life over 6 decades. Shri Krishna is credited by many for placing Bengaluru on the global map as India's Silicon Valley. In the passing away of Shri S.M. Krishna, the country has lost a veteran statesman, an able administrator, and a transformative leader. We deeply mourn the passing away of Shri S.M. Krishna. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
इसके बाद सभापति ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखवाए। इसमें आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र शामिल थे। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे गए। ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। इसके साथ ही आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी गई। Honorable Chairman, sir, I wish to lay a copy each of the following reports, Hindi and English version, of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. First report on demands for grants 24-25 of the Ministry of Power. Second report on the demands for grants 24-25 of the Ministry of New and Renewable Energy. I rise to lay the first report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the subject Demands for Grants 2024-25 and second report on action taken by the government on the recommendations contained in the 21st report of 17th Lok Sabha on the subject Smart Cities Mission and Evaluation of the Ministry of Housing and Urban Affairs, both in Hindi and English versions, listed against my name in today's list of business. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the Hindi and English versions of the report number 1 of the Committee on Public Accounts 2024-25 as listed against my name in today's list of business at serial number 5 of revised list of business. Thank you, sir. इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन, रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स ऋषिकेश और देवघर के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। Honorable Chairman, sir, I rise to move that in pursuance of the Section 4G, read with Section 6(1) of All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Rishikesh, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Deoghar, in vacancy caused due to the retirement of Shri Samir Oraon from the membership of Rajya Sabha on 3rd May 2024, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. इसके बाद सभापति ने नियम 267 के तहत नोटिस को लेकर सदन को जानकारी देना शुरू किया, लेकिन सदन में शोरगुल शुरू हो गया
और सभापति ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से सदस्य शोरगुल करने लगे। शोर शराबे में कुछ भी सुना नहीं जा रहा था। इस बीच सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के विदेशी संगठन से साठगांठ को लेकर रिपोर्ट आई है। उन्होंने मीडिया में आ रही रिपोर्टों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है, और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। इस पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। इस बीच डीएमके के तिरुचि शिवा ने व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि दूसरे सदन के नेता का नाम इस सदन में नहीं लिया जा सकता। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है, बल्कि पद का नाम लिया है। इस दौरान दोनों पक्षों के अवरोध के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। The point of order raised by Sri Tiruchi Shiva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सभापति ने सदन को बताया कि आज हम 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज दुनिया भर में मानवीय गरिमा, समानता और न्याय के लिए आधारशिला है, जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूती देता है। Honorable members, today, the 10th of December 2024, we mark the 76th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights,
adopted by the United Nations in 1948. This document is a cornerstone for human dignity, equality, and justice worldwide, affirming the rights of all individuals, regardless of race, gender, nationality, or belief. Its 30 articles reflect humanity's shared aspirations, vision for freedom and equality. Honorable members, the theme this year, Our Rights, Our Future, Right Now, emphasizes the transformative power of human rights in building a more peaceful, egalitarian, just, and sustainable future. Human rights guide us in addressing global challenges and empowering individuals and communities. As we reflect on the progress made, we reaffirm our commitment to protecting and promoting these rights. India has always been a proud advocate of these universal ideals. Our civilizational ethos of thousands of years has made seminal contribution in nurturing and blossoming these values, has echoed the spirit of the Declaration to ensure a life of dignity and equal opportunities to all its citizens. As representatives of the people, we bear the responsibility to ensure that the values of justice, liberty, equality, and fraternity are safeguarded and strengthened in our nation. On this momentous occasion of the 75th anniversary of adoption of our Constitution, let us pledge to work towards a world where every person can live with dignity, free from oppression, and with equal opportunities to fulfill their potential. बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में आज विपक्ष ने कांग्रेस की विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर कोई निर्णय न होने और सत्ता पक्ष पर सदन की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगाया। विपक्ष के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद एक पवित्र स्थल है। इस भवन की उच्च गरिमा और मर्यादा है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति,
तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें, सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन में अवरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सौकिया ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। Respected sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 3 श्री कृष्ण पाल जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम में संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभापत्र रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय जी। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज। आइटम नंबर 6 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभापटल पर रखता हूं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रति के अलावा ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन रखे गए। इसके साथ ही आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। आइटम नंबर 11 श्री KC वेणुगोपाल जी। Sir, I rise to present the report number 1, Hindi and English version of the Committee on Public Accounts 24-25 as listed against my name in today's revised list of business serial number 11. आइटम नंबर 12 श्री रंग अप्पा वार्णे जी। मैं आज की पुनर्शिक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्न 2 प्रतिवेदनों को हिंदी और अंग्रेजी का संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। विद्युत मंत्रालय की अनुदानों के मांगों को 2024-25 से संबंधित समिति का पहला प्रतिवेदन, नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का 2024-25 के संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन समक्ष रखता हूं। आइटम नंबर 13 श्री M श्रीनिवासुलु रेड्डी जी। Thank you very much, Speaker sir. Sir, I rise to present the first report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the subject demands for grant 2024-25 and second part on action taken by the government on the recommendations contained in the 21st report of 17th Lok Sabha on the subject Smart Cities Mission and evaluation of the Ministry of Housing and Urban Affairs both in Hindi and English versions listed against my name in today's list of business, sir. कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की 51वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सदन में बयान दिया। आइटम नंबर 14 श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची क्रमांक 14 में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान 2023-2024 मांग संख्या 1 की स्थायी समिति की 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण रख रहा हूँ।
लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजभाषा समिति के लिए लोकसभा के एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव किया और कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की ओर से नारियल विकास बोर्ड में 2 सदस्यों के चुनाव के संबंध में प्रस्ताव लाया गया। आइटम नंबर 15 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चौहान बसंतराव बलवंतराव, जिनका 26 अगस्त 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं नारियल विकास बोर्ड नियमावली 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड ग के अनुसार इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके साथ ही बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 को पेश किया। I rise to move for leave to introduce the Merchant Shipping Bill 2024 to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instrument to which India is a party, and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matter connected therewith or incidental thereto. आपका प्रस्ताव। Respected sir, Merchant Shipping Bill 2024 is as per the constitutional provision. It has been vetted by Department of Legal Affairs and Legislative Department. Earlier, Merchant Shipping Bill was introduced in the Lok Sabha in 2016 and referred to the Parliamentary Standing Committee. It was also discussed in details in the Parliamentary Standing Committee and also especially discussed with the relevant stakeholders. So, sir, this is as per the provision of the Constitution of India. थैंक यू। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मंत्री जी। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू। लोकसभा में गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस पर भारत विरोधी विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंध रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर सदन को बाधित कर रही है। जो प्रिविलेज का बात कर रहे हैं, जब पहला सुन लीजिए, पहले 4 दिनों तक आप लोगों ने सदन का टाइम को बर्बाद किया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व जॉर्ज सोरोस के साथ तालमेल करके देश के खिलाफ काम करते हैं और फिर रंग बिरंगे नारा लगा करके कपड़ा पहन करके और यहाँ तरह तरह का आपत्तिजनक बात
मांग करता हूं कि आपको शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आपके खंडन करना चाहता हूं। इसके बाद कांग्रेस के सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और उनकी ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कोई निर्णय न होने को लेकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शेयर पर जाइए, आसन पर जाइए। आप लोग प्लीज जाइए, अपने शेयर पर जाइए। प्लीज आप लोग भी बैठिए। प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।